خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور مبارک نام میں آپ سب کو سلام۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام جو زندہ اور مؤثر اور سچا کلام ہے، جو لا تبدیل کلام ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ آمین۔ انسان چاہے کوئی دولت مند ہے، نیک ہے، بدکار ہے، نجات پا چکا ہے یا گناہ گار ہے، ہر انسان کی خدا نے اس زمین پر زندگی کی حدیں مقرر کی ہیں۔ چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، جو اس زمین پر آیا ہے اسے اپنے وقت کے مطابق واپس جانا ہے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو احساس کرنے والے ہیں، ان کی یادیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ لیکن جو زندگی میں برا کریکٹر اور برے رویے رکھنے والا ہے، اسے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ تو پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 18 آیت بڑی مشہور آیت ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور کھولیں گے، اور یہ دو دوستوں کی آپس میں محبت کی گفتگو ہے۔ اس میں ساؤل بادشاہ کا بیٹا جو یونتن تھا، وہ داؤد سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ بڑے دوست تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ان کی ایک ہی بات تھی اور یہ بڑے ملنسار، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، پیار کرنے والے دونوں دوست تھے۔ تو لکھا ہے 20 باب کی 18 آیت میں، تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ یونتن داؤد کو خود ہی کہتا ہے کہ میرا باپ ساؤل بادشاہ تجھے مارنا چاہتا ہے، تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ تجھے مار دے اور میں ایک اچھا دوست کھو دوں، اس لیے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ میرے باپ نے تجھے مارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک طرف اسے بھیج رہا ہے کہ یہ اس کی جان بچ جائے، اور دوسری طرف اس کی جدائی کا بھی احساس ہے، اور کہتا ہے کہ کل نیا چاند ہے، کیونکہ بادشاہ نئے چاند پر اپنے سارے ملازموں کو اکٹھا کرتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر انہیں 7 کرسیوں پر بٹھاتا اور کھانا کھاتا تھا۔ تو یونتن داؤد سے کہتا ہے کہ کل نیا چاند ہے، سب موجود ہوں گے، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوں گے، لیکن تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی اور تیری جگہ کو کوئی بھی دوسرا پر نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، آج سارے رشتہ دار، بہن بھائی، دور و نزدیک سے بھائی عقیل کی یادگاری کی عبادت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب تو موجود ہیں، لیکن اس کی جگہ خالی ہے اور کوئی بھی انسان اسے پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کے ایام اتنے ہی تھے۔ اس نے اچھی کشتی لڑی ہے، اچھی زندگی بسر کی ہے، اور
खुदावंद के हुक्म के मुताबिक, उसके ठहराए हुए वक्त के मुताबिक वो वापस चला गया। अचानक जब किसी इंसान की मौत होती है तो इस पर बहुत सी मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। जवानी की मौत में बहुत सारी अजीब अजीब बातें लोग बनाते हैं, बहुत से ख्याल अपने अपने पेश करते हैं कि शायद ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ गलती सी, की सी, ਇਹਨੇ की ਕੀਤਾ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये सारी इंसानी सोचें और ख्याल हैं, पर खुदा ने हर इंसान की हदों को मुकर्रर किया है। हम अगर ज़बूर 139 जो हम अक्सर गाते हैं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं, और अभी हमारे बुज़ुर्ग जो जिन्होंने पहले दुआ की है उन्होंने भी इस ज़बूर में से चंद आयात को बोला। लिखा है ज़बूर 139 और उसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। यूँ लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और ख़ास बात और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। आमीन। खुदा का बंदा दाऊद बयान करता है कि जब मैं माँ के पेट में बन रहा था, अजीबो गरीब तौर से तू मुझे बना रहा था, और मैं अभी इस ज़मीन पर आया नहीं, माँ के पेट से निकला नहीं, पर तूने मेरी ज़िंदगी के दिन अपनी किताब में लिख लिए थे। आमीन। हमारे इस ज़मीन पर पैदा होने से पहले हमारी ज़िंदगी के दिन खुदा अपनी किताब में लिख लेता है। और अय्यूब की किताब में 14 बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस हकीकत का भी पता चलता है। उसकी पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है, वो फूल की तरह निकलता है, काट डाला जाता है, वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। और 5 आयत में लिखा है, उसके दिन तो ठहराए हुए हैं, यानी उसके दिन मुकर्रर किए हुए हैं। उसके दिन क्या है? मुकर्रर किए हुए हैं, ठहराए हुए हैं, और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है। हमारे दिनों, हमारे महीनों, हमारे सालों की तादाद, हमारी ज़िंदगी के अयाम हमारे पास नहीं है, बल्कि खुदा के पास है। आमीन। क्या हमारा ईमान इस बात पर है कि हमारी ज़िंदगी के अयाम, हमारे महीनों की तादाद खुदा के पास है? इसलिए हमें मुख्तलिफ बातें किसी के बारे में भी कहनी नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे वाक़यात में, जब कोई जवान मर जाए या हादसाती तौर पर किसी की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट के साथ, जलकर या बीमारी में, या अचानक से अटैक हो जाए, कोई मर जाए, तो लोग बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन बातें करने वाले ये नहीं जानते कि उनकी अपनी मौत किस तौर से आ जाएगी। अगर मैं किसी को बातें करूंगा तो मुझे तो पता नहीं है कि शायद मैं यहाँ प्रीच करता हुआ मर जाऊं, या मैं चर्च से बाहर ना निकलूं, या मैं अपने घर तक ना पहुँच जाऊं,
मुझे तो इस बात का पता नहीं है। जब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, जब मैं अपनी हद तक पहुंच जाऊंगा, वहां पर चाहे मैं बिल्कुल फिट तंदुरुस्त हो जाऊं, बिल्कुल हशाश बशाश होकर भी, जब मेरा वक्त आ जाएगा मैं वहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अयाम खुदा ने मुकर्रर किए हुए हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। तो भाई अकील ने अच्छी ज़िंदगी बसर की है, खुदा खौफी में ज़िंदगी बसर की है, और उसकी ज़िंदगी के जब अयाम पूरे हुए तो खुदा ने उसे वापस बुला लिया, क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा ने फरमाया, इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। और किसी ने ये कहा है कि ये दुनिया एक स्टेज है, ये दुनिया एक स्टेज है, और हर इंसान जब इस ज़मीन पर आता है वो अपना करैक्टर अदा करके, अपना किरदार अदा करके इस स्टेज से फिर वापस चला जाता है, और जो अच्छा करके जाएगा उससे अच्छा इनाम मिलेगा, और जो बुरा करके जाएगा उसे सज़ा और जहन्नुम की आग में जाना होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम दूसरों की नुक्ताचीनी में या दूसरों पर उंगलियां उठाने में अपनी ज़िंदगियां बसर ना करें, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, तौबा करें, उसके पीछे चलें, उसकी राहों पर चलते रहें, और सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, और मसीह की खिदमत में बढ़ते जाएं, क्योंकि वो जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हमारी ज़िंदगियों के अयाम थोड़े हैं, और कलाम में ये लिखा है, खुदावंद यीशु ने कहा, जो थोड़े में दयानतदार है मैं उससे बहुत का मुख्तार बनाऊंगा। हमारी ज़िंदगी ज़मीन पर थोड़ी है, अगर इस थोड़ी ज़िंदगी में हम खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, और पाक और रास्त ज़िंदगी बसर करते हुए इस जहान से जब रहलत कर जाएंगे तो हमारा हिस्सा बखरा खुदा की बादशाही में होगा। लेकिन अगर गुनाह में, बदियों में, बुराइयों में ज़िंदगी बसर करके जाएंगे तो फिर जहन्नुम की आग हमारा इंतज़ार कर रही है। इसलिए भाई अकील जो हमारे दरमियान नहीं रहे, आज ये कलाम उनके लिए नहीं है, ये कलाम मेरे और आपके लिए है कि हमारी ज़िंदगी के जो बाकी अयाम हैं, जितना भी वक्त रह गया है, हम तौबा करें और खुदावंद की पैरवी करते हुए इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब हम यहाँ से रुखसत हों तो हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.